I guess हम live जा चुके हैं. So we are just going to wait for people to come in and view the session so we can start officially. We have 3 members viewing the session, so okay. Let's wait for a few more and then we'll officially start our session. I hope everyone's as excited as I am right now. We are going to have an amazing session, inshallah. Okay, I think हम अभी start कर लेते हैं अपना session. Hi everyone, this is Fatima Brohi. I work as a lead facilitator at Champions of Change program, Family Education Services Foundation. थोड़ा सा brief introduction मैं दूंगी Champions of Change के हवाले से. Champions of Change एक community service based project है जहाँ पे हम different universities के साथ collaborate करते हैं to train students and youngsters on community service, tolerance, diversity, acceptance and peace building. हमारे पास आज मौजूद है हमारे कुछ amazing participants and as the name suggests, stories of change. We are going to have a conversation with our best participants to talk about their experience with COC, the projects that they implemented and how has how their projects impacted other people who were beneficiaries of their project and the overall experience throughout Champions of Change program. So without further ado, हम लोग अपने स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रम रोल्स. आई एम गोइंग टू इनवाइट हसनैन अख्तर. हसनैन अख्तर एनईटी के पार्टिसिपेंट हैं एंड ही इज अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर. उनको बहुत ज्यादा शौक है. ही इज वेरी पैशनेट अबाउट डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड ही बिलीव्स दैट डायलॉग्स जो है वो पीस बिल्डिंग की तरफ एक सोसाइटी को लेकर जा सकते हैं. ही हैज won the title for Best Speaker of Pakistan in 2018 and even in 2020 on ARY Digital. So please welcome Hasnan Akhtar. Hello Hasnan. Hello. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे. बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम. और आई होप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि आज जो ऐसी स्टोरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं वो है कि जिन्होंने हमारी सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया. और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा सेशन होगा और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर रहेगा. इंशाल्लाह. So we are looking forward to an exciting session. हमारी जो अगली स्पीकर हैं, her name is Mehma Salim. Mehma Salim public administration student है and she has been a part of different student societies in Karachi University. उन्होंने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था बज़्म मकालमा के नाम से, जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं कि किस तरह लॉ मेकिंग को स्टूडेंट्स की तरफ लेके जाए और यंगस्टर्स को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो लॉ मेकिंग की तरफ आए. She's also very interested in public speaking and she has been part of different months and debating competitions. So without further ado, welcome Mehma Salim. Hello Mehma. Hello Fatma, how are you? I'm good Mehma, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो साथ में स्पीकर्स हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस शो को भी एंजॉय करेंगे. इंशाल्लाह. So welcome Mehma.
अब हम अपने लास्ट स्पीकर को बुलाते हैं। इन स्पीकर का नाम है हसन बिन जकी। हसन और हसान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अभी तक मैं पूछ रही थी कि इज इट प्रोनाउंस इट हसन और हसान, सो वी आर इनवाइटिंग हसान बिन जकी। हसान बिन जकी is also very passionate about debating and public speaking. He has won gold medal for his achievements in 2014, 15 and even 19, and he is associated with the student councils of Karachi University और CSR societies के founding executive member भी रहे हैं. So welcome Hassan bin Zaki to our session. Thank you so much. I hope नाम ठीक लिया मैंने. जी बिल्कुल. Okay, so are you all excited and ready for the session? Yeah, बहुत ज़्यादा. Definitely. Okay. For sure. So वैसे तो थोड़े से जो कॉमन सवालात होते हैं हमारे कि कैसा गुजर रहा है क्वारंटीन और ये लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है आप सबका? मेरा तो मजे में गुजर रहा है. अच्छा जी मैम, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिजी गुजर रहा है क्योंकि फारिग तो बैठना आता नहीं है, और जिस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहते थे, वो स्टार्टिंग क्वारंटाइन का जो स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो गया था क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, तो स्टार्ट लिया. उसके बाद इवन अभी भी MOIC से मैं 1 घंटे पहले फारिग हुई हूँ, इन वर्चुअल MOIC से, दैट वाज इंटरनेशनल वन, और अब मैं यहाँ पर हूँ. तो इसी तरीके से एंगेज किया हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज कर रहे हैं, तो या इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह. नॉट कमिंग स्लो वाला सीन है. जी हसनैन, आप बताएं. अच्छा, ज़्यादा कुछ खास जो है फ़र्क पड़ा नहीं है इस वजह से, क्योंकि NED में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर बिजी हो चुके हैं. उसके अलावा ये है कि इसी प्लेटफॉर्म को अपने, जिसके बारे में लोग आज बात करेंगे, इज़हार ख्याल के बारे में, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ लानी थी उसमें, जो आपसे डिस्कस की थी, तो उसी के से रिलेटेड पढ़ाई चल रही है. उसके अलावा जो अपना पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है वो बाकी है, बाकी लिखना लिखाना जारी है. जबरदस्त. सो सवालात की तरफ आते हैं, एंड व्यूअर्स से भी हम लोग कह देते हैं कि अगर आपके कुछ सवालात हैं हसनैन से, हसान से और मेमा से, यू कैन प्लीज कमेंट बिलो सो वी कैन आस्क आवर स्पीकर्स. हसनैन, पहला सवाल मेरा आपसे है. आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट इजहार ख्याल के नाम से. नाम भी बड़ा यूनिक है ना, इजहार ख्याल. एंड आपने इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया जहाँ पे डिफरेंट स्पीकर्स आए, उन्होंने सोशल इश्यूज पे बात की, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी और किस तरह यंगस्टर्स चेंज लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में. आई जस्ट वांट टू नो कि आपका ये जो आइडिया है इजहार ख्याल का, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, इसका आइडिया कहाँ से आया, इसका वजूद कहाँ से आया? काफ़ी अच्छा सवाल. और उससे पहले थोड़ी सी जो मैं चाहूँगा वजाहत करना वो ये कि इजहार ख्याल जो था हमारा, और जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पे, यानी मेरा जो कैंपस है NED यूनिवर्सिटी का, वो बंस रोड पे, यानी वो ओल्ड कैंपस है, यानी सिटी कैंपस. तो वहाँ पे जब हम लोग रिसर्चेस करने के लिए बाहर निकलते थे, या जब हम लोग आना जाना यूनिवर्सिटी में हमारा होता था, तो रास्ते में मैंने अक्सर इस चीज़ को नोटिस किया कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, या वहाँ पे जो लोग अपने मुआश के सिलसिले में आते हैं, या अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सिलसिले में आते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि गुस्से का शिकार, या वो अपनी बात को या अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं. ठीक है, बहुत छोटी सी बात ये है कि अगर एक बंदा, एक आम आदमी अगर बस से उतर के बंस रोड की तरफ आ रहा है, तो अगर उसको रास्ते में भी किसी से बात करने का जो ढंग या बात करने का सलीका होता है, या अपनी बात किस तरीके से मनवानी चाहिए, वो उसको जो है क्या कहते हैं नहीं आ रही थी, या वो जो है उसमें लैक करता है. इस वजह से हमारे माशरे में एक चीज़ ये होती है कि मतलब फ़ौरन जो है ना वो एक इनटॉलरेंस की तरफ जाते हैं, यानी कोई किसी की बात नहीं सुनता, या उसकी बात को जो है मतलब फ़ौरन रद्द कर दिया जाता है, उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है. तो ये एक चीज़ बहुत गलत थी. इसी से फिर हमारा थोड़ा, मेरा पर्सनली जो आइडिया था वो डेवलप हुआ, और हमारी पूरी टीम जाहिर सी बात है इजहार ख्याल की हमारे साथ थी. और तो हमारे ख्याल ये जनरेट हुआ कि हमारे मुआशरे में जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानियां हैं, जो मसाइल आते जा रहे हैं, उनको हम लोगों ने प्रॉब्लमेटाइज करना शुरू किया. यानी उनको हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाना शुरू किया कि यार इसका रूट कॉज क्या होगा. अब उस रूट कॉज की तरफ हम लोग जाकर आए तो कहीं ना कहीं हमें रुकना था. हमने सोचा कि यार जब हम लोगों ने रूट कॉज डेवलप करना शुरू किया, तो उसके बाद हम उस पे पहुंचे, इस आइडिया पे पहुंचे कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक आम आदमी को आर्ग्यूमेंट डेवलप करना, अपनी बात सामने वाले को मनवाना, और किसी और की बात किस तरीके से सुननी चाहिए, या किस तरीके से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, ये नहीं आता. तो इसकी वजह से हमारा रैशनल था कि जिसकी बुनियाद पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाएं
कि जिसमें जो है ख़यालात का इजहार हो, जिसमें जो है अपने जज्बात का इजहार हो, अपने जो आपकी थिंकिंग है आप वो थिंकिंग लोगों तक पहुंचा सकें। इसी की वजह से हम लोगों ने जो है वो सेशंस करना शुरू किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस पेंडेमिक आउटब्रेक हमें वो सेशंस अपने ऑनलाइन लेके जाने पड़े, जिसकी वजह से हम लोग लेमैन तक अभी भी रीच नहीं कर सके। बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग इसमें प्लान करेंगे जाएंगे। लेकिन फिल वक्त भी जो सेशंस हमारे हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास स्पीकर्स है वो ऐसे थे कि जिनका अपना बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में। अगर यहाँ पर व्यूअर्स हमारे जानते हैं कि शाहनियाल इदरीस उसमें हमारे साथ थे, कराची यूनिवर्सिटी के उसमें हमारा बासी हमारे साथ थे, उसमें हमारे साथ कुछ सोशल वर्कर्स आए जिसमें बहुत मशहूर नाम है मोहम्मद अतीब हैं, तलहा आलम है, जो डिबेटर सोसाइटी हमारे सबका लोग इनको जानते हैं। तो वो लोग हमारे साथ आए और हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स रखे कि जाहिर सी बात है जो टॉपिक्स एक आम आदमी जिनसे रिलेट कर सके, हमारी यूथ उससे रिलेट कर सके, तो उन टॉपिक्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उनके ऊपर बातें करना शुरू की, उनके मसाइल की तरफ जाना शुरू किया और मसाइल का हल निकालने की कोशिश की और फिर किस तरीके से एक आम आदमी उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है, हम लोगों ने ये सीखना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला जो सीरीज़ ऑफ सेशन थी वो कामयाब रही। मज़ीद इंशाल्लाह फ्यूचर में इसमें कुछ प्लान्स हैं, अभी उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त हसनैन, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया एंड द बेसिक आइडिया ऑफ इजहार ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेड एंड आई आल्सो बिलीव कि आर्गुमेंटेशन इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, किस तरह आप अपने बात को आगे पहुंचा सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस बिल्डिंग। अब मेरा सवाल महमा से है। महमा, आपने जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया बज़्म मुकालमा, नाम इतना इट्स अ वेरी हैवी नेम, बट आपने इसको टैगलाइन दिया आर्ट ऑफ लॉ मेकिंग, विच मेड इट वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ, लॉ मेकिंग एक आर्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें बहुत मुश्किल अल्फाज लगते हैं और हमें लगता है कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे, ये यंगस्टर्स का काम नहीं है, वो जो लोग असेंबली में बैठते हैं वो करेंगे और उनका काम है। सो हाउ डिड यू मेक इट सो इजी एंड हाउ डिड यू सी कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा यंगस्टर्स पे, कि अगर इसको इजी लेंगे लोग या फिर इसको एज अ फील्ड दैट इज डूएबल फॉर यंगस्टर्स, एज अ फील्ड दैट्स इजी फॉर यंगस्टर्स टू अप्रोच, क्या आपको कैसे लगा कि इसको हम यंगस्टर्स को तक लेके जाएं और इसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? देखिए फातिमा, जब हम बात करते हैं डायलॉग की तो एनयूएंस हम देखते हैं, हम यूथ असेंबलीज देखते हैं, लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो टॉपिक्स होते हैं आफ्टर 3 days जो बिल हमारे पास आता है वो उसका काम वहीं पर ही होता है, वो आगे नहीं जा पाता। ठीक है, और वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एज सच डायरेक्टली रिलेट नहीं करते। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन हम एज सच डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखते, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस नहीं करते, हम उसको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन बात ये थी कि जब हमने देखा, जब हम डिस्कस कर रहे थे बैठकर हम ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं फॉर पीस बिल्डिंग एंड टॉलरेंस, तो हमने ये देखा कि लोगों में शऊर की बहुत कमी है, स्पेशली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम हमारे पास एक एलीट क्लास से लेकर एक लेबर बंदे तक के राइट्स हैं, लेकिन अभी जो हम लोग एक डिस्पैरिटी, एक इनटॉलरेंस देखने में आती है हमारे पास। अगर हम एग्जांपल दो आपको फेमिनिज्म की, तो ये कहा जाता है राइट्स नहीं मिल रहे, राइट्स की बहुत ज्यादा रोना होता है उसके बारे में। तो हमने ये देखा कि लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं, अपने राइट्स के बारे में। तो वी थॉट के ये सारी चीज़ें तो सब करवाते रहते हैं, हमारी इंस्पिरेशन ये थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही यूथ को लाएं, क्योंकि नहीं पता यूथ को इसके बारे में। तो टू मेक इट इजी, दैट्स व्हाई वी मेड इट अ टैगलाइन के क्योंकि हमने लॉ मेकिंग की तरफ बहुत फोकस किया और फिर हमने ये हमारे पास एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी को हमने बहुत इनकरेज किया, खुद भी पढ़ा, फिर दूसरों को भी इनकरेज किया। फिर हमने जो स्पीकर्स अपने पास लिए तो हमने उनसे उसी के बारे में डिस्कशन की। इवन हम लोग की जो कमिटीज हैं, जो हम जिन लोगों को नहीं पता व्यूअर्स को, तो मैं उनको बताती चलूँ, वी हैव 4 कमिटीज इन बज़्म मुकालमा। We have for interfaith harmony, we have for child abuse, we have for global warming and empowerment. और एम्पावरमेंट भी हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं की वुमेन तक, हम इसको मेल एम्पावरमेंट तक भी ले गए, फीमेल एम्पावरमेंट तक भी ले गए, चाइल्ड एम्पावरमेंट एंड ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट, राइट। तो इससे हमने ये इम्प्रेशन दिया कि फीमेल राइट्स की जो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, मेल और फीमेल आपस में लड़ गए थे सोसाइटी में, हमें बहुत ज़्यादा मसले देखने में आ रहे थे। तो हमने ये 4 कमेटीज इंट्रोड्यूस करवाई और इसका एक बहुत पॉजिटिव ये देखा कि हमने जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली 1973 जो कि अभी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है,
उसकी सही। लाइट में हमने उन आर्टिकल्स के चंक्स एक्सट्रैक्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने कहा कि इनको कमेटी की बुनियाद बनाई जाए, स्टडी गाइड बनाई जाए। और हम जबरदस्त। इनकरेज करते हैं कि अपने डेलीगेट्स को कि हम आप उन्हीं आर्टिकल से बात करें और ये देखें, अच्छा अब डिस्कस कर लिया लेकिन इम्पेक्ट किया जाएगा, फिर वही बात आ जाती है। तो हमने एक बहुत बड़ी चीज ये रखी, हमारा इवेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन आगे कैसे जाती है हमारी बात, वही बात आ गई कि MUNs हैं तो वहाँ पर बात आगे नहीं जाती। तो हमने इसमें हमारे जो चेयर्स होंगे, ऑब्वियसली अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, बट वी आर होपफुल कि नो मैटर जितना भी हमारा ड्रैग होता है आगे क्वारंटाइन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बट हम करवाएं ये फिजिकली। तो इसमें हमारे पास जो भी चेयर्स होंगे, डायस होगा, या हमारे पास जो गेस्ट होंगे वो हमारे MNS और MPS होंगे जो कि असेंबलीज में बैठते हैं। तो वो हमारी बात आगे पहुंचाई जाएगी। इवन हम लोग के ऑनलाइन सेशन हुआ, वी हैड फारूक सत्तार, तो हमने यही सारी बातें की, फिर उसमें भी उनका बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला, और ही इवन इनवाइटेड अस एंड पर्सनली टू मी एज वेल कि वो एक शैडो बजट बना रहे, उसमें भी आप आए। और अब बहुत सारी सक्सेस उससे भी मिली है, मैं आगे जरूर बताऊंगी, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ डिटेल्ड आंसर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक फील्ड है यंगस्टर्स के लिए जानना कि लॉ मेकिंग को किस तरह हम एक मुश्किल अप्रोच समझते हैं, बट इट्स वेरी इजी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो अभी आते हैं हसान की तरफ। हसान, इजहार ख्याल के बारे में हम बात कर रहे थे, बज़्म मुकालमा के बारे में हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमें पता है कि आपने पायलट फेज में KU में काफ़ी स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है उनके प्रोजेक्ट्स में, एजुकेशन के हवाले एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, और अभी भी पता चलता है कि यू आर मेंटोरिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट ग्रुप्स टू इम्प्लीमेंट देयर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, और इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। एंड मुर्तज़ा भी काफ़ी बात करता है आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटोर करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। So I want to ask कि आपकी नज़र में, being a mentor to the students, what do you believe कि इन प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट है, इन प्रोजेक्ट्स की क्या ज़रूरत है, किस तरह ये प्रोजेक्ट्स स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं यंगस्टर्स को, और सोसाइटी को आगे लेके जाने में इन प्रोजेक्ट्स का क्या हाथ है? I think फातिमा, द रीजन इज, मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स या बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि यार हमारी डायरेक्शन क्या है। उनको नहीं पता होता कि हमने किस तरह से एक ऐसा पॉजिटिव चेंज अपनी सोसाइटी में लेकर आना है जो कि पाकिस्तान के लिए या हमारे मुल्क के लिए एक चेंजिंग मोमेंट बन सके। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए मुझे जहाँ तक जब मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना तो मुझे लगना शुरू हुआ कि यार मुझे एक डायरेक्शन मिलना शुरू हुई है। मुझे लगना शुरू हुआ कि यार मुझे एक डायमेंशन जो है वो मेरे सामने खुल रही है, और मुझे पता चल रहा है कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर जब जो सेशंस होते हैं उनमें मुर्तज़ा भाई हमारे ट्रेनर थे, और उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रेनिंग की है तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चलना शुरू हुआ कि हमारे अंदर यार हम ये भी कर सकते हैं, यार हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी भी है। और फिर हमें साथ साथ हमें दूसरों जो हमारे साथ इंटर्नीज थे, हमें उनकी कैपेबिलिटीज का और उनकी एबिलिटीज का पता चलना शुरू हुआ कि यार इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। फिर जब सारी सोचें मिलकर बैठी ना तो उसमें जो आइडियाज जनरेट हुए वो ऐसे आइडियाज थे कि यार मैं कहता हूँ कि मतलब अगर वो इम्प्लीमेंट हो रियल ग्राउंड्स में, वो अगर इम्प्लीमेंट हो तो ऐसे आइडियाज हैं जो वाकई में एक पाकिस्तान में रियल चेंज लेकर आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल। तो जो बात कर रहा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि उनमें रोड टू रोजगार था। इस वक्त हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए नहीं पता। वो रोड टू रोजगार प्रोजेक्ट ऐसा था जहां पर उन्होंने उन पॉइंट्स को बेसिकली हाईलाइट किया था जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बनती हैं, और साथ साथ किस तरह से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को बेहतर करके जो है वो जॉब्स वगैरह ले सकते हैं। इसी तरह मेंटल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें पता है कि हम अबव टू 80% लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं। तो उसमें फिर बेशुमार आपके कामयाब बिजनेसमैन भी शामिल हैं, आपके कामयाब लोग भी हैं, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल होते हैं। तो फिर सारी जो उनकी कामयाबी होती है वो एक तरफ, और वो नाकामी जो है वो फिर का बायस बन जाती है। तो वहां पर आरा अनजिप द साइलेंस उसके नाम से इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा काम हमने पहले भी किया हुआ था। उसके ऊपर बकायदा हमने एक डिबेट हुई थी, हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट हुई थी, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया था।
वहां पर, और उसके बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गया बकायदा सिंध असेंबली में, वहां पर पास हुआ बिल। तो हमने ये सोचा क्यों ना उन स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर, ऐसे बच्चे जो कि मेहनत कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। उसके लिए हमने फिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से बात की थी, और उनने फिर उन बच्चों के स्कूल के एडमिशन किया था। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सका था, लेकिन इट वाज लाइक अ ग्रेट ह्यूज सक्सेस फॉर अस। हाँ, इनिशिएटिव अच्छा था, और इन द एंड ऐसा गोल जो था ना हमें अचीव हो गया था। तो फिर वो जब चीज हुई ना, तो फिर वहां पे हुआ कि यार अब हमने जो कुछ सीख लिया है वो हमने चीज डिलीवर करनी है। जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो हमने दूसरों में डिलीवर करनी है, और उनकी जो वीकनेसेस है ना, उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलना है। तो मुझे लगा था कि यार हमें जो जिन बच्चों की मेंटोरिंग कर रहा हूँ और जिन प्रोजेक्ट्स की मेंटोरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगा था कि यार मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी और ये वो, लेकिन जब मैंने इन बच्चों को देखा, ये मुझसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह से। और ये जिस तरह से प्रोजेक्ट्स को अपने लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने पूरा डिजाइन किया था, आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, लिटरली सरप्राइज्ड कि मतलब ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल, जिनको मैंने कभी सोसाइटीज में नहीं देखा था, ऐसे बच्चे जिनको मैंने कभी ऑन फ्रंट फुट नहीं देखा था, लेकिन जब वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने, चैंपियंस ऑफ चेंज का पार्ट बने, तो उन बच्चों के जो आइडियाज थे और जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे, उनके अंदर जो एनर्जी थी, वो मुझे एनर्जी दे रही थी कि यार इन लोगों से जो है वो मैं बेसिकली एक किस्म का एक मोटिवेशन लूं और एक इंस्पिरेशन जो है वो मुझे मिल रही थी इनसे। तो that was great. That's amazing. Thank you, Hassan, for sharing that. क्योंकि आपने जो बात की ना कि आप मेंटोर कर रहे थे, और आपको काफी हैरानी हो रही थी कि the students that you are mentoring, they are so capable to do amazing things. और जब मैं और मुर्तजा भी आप के साथ बातचीत करते हैं, मेंटोर करते हैं, एंड वी आर अमेज्ड टू, आप लोग जैसे, वी आर सो प्राउड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू, पार्टिसिपेंट्स लाइक यू, who do such amazing things. हसनैन से काफी मेरी बातचीत होती रहती है regarding his projects, और आप लोगों से भी अभी बातचीत हो रही है, and I feel immense proud because you are there to bring a change in the society, and that's something really positive, right? अच्छा जी, हसनैन, आपसे मेरा सवाल है, आपने you are very passionate about public speaking, you are very passionate about debating, आप argumentation पे believe करते हैं, आप dialogues पे believe करते हैं, आपका project भी इज़हार ख्याल dialogues पे based है. So I want to know that how do you feel like dialogue and argumentation and bringing your point of view in front of others is important for peace building? क्योंकि जब हम peace building की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अमन के लिए हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता. तो आप इसको किस तरह कंपेयर करते हैं कि अमन के लिए डायलॉग्स होना ज्यादा जरूरी है? काफी इंटरेस्टिंग चीज इस वजह से है क्योंकि मैं खुद पर्सनली चाह रहा था कि इस हवाले से बात करूं. अच्छा, इससे पहले मैं इसकी और बात शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि पहले मैं सबको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि मैं जो सोचता हूं या जो मुझे मेरे मेंटोर्स ने सिखाया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में. पब्लिक स्पीकिंग मतलब मेरे नज़दीक हमारे अंबिया की मीरास है. क्योंकि अगर आप तारीख का मुताला करें तो आप ये देखेंगे कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ गुजरी, चाहे वो हमारे अंबिया हों, चाहे वो हमारे हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज़ हों, या चाहे वो लोगों के जिन्होंने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेकर आए किसी सोसाइटी में, तो उन्होंने एक चीज़ जो उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से बोलना आता है या बहुत अच्छी तरीके से अपनी ऑडियंस को मुतासर करना आता है. ठीक है, अब इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे. इसका मतलब ये कि अगर आपके अंदर अपनी आवाम का दर्द नहीं है या अपने लोगों के लिए दर्द मौजूद नहीं है ना, तो आप फायदा नहीं है फिर आप उसके ऊपर बात करना शुरू करें, या फायदा नहीं है कि आप उसके ऊपर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू करें. अब यहाँ से हम आपके सवाल से कनेक्ट करते हैं कि हमारी मुआशरे में किस तरीके से जो ये इतना वायलेंस बढ़ गया है, या जिस तरह से जो ये एग्रेशन सोशल मतलब बढ़ता जा रहा है, तो इसको किस तरीके से काउंटर करना चाहिए इस चीज़ से. देखिए, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी मुआशरे में ना हर दूसरा बंदा किसी ना किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता. लड़ने की कुछ वजूहात होती हैं, या इस तरह के जो भी मतलब डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या वायलेंस क्रिएट होता है उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं. अब उन वजूहात को पहले ढूंढना चाहिए, और जो मेरे नज़दीक जो मेरा मुताला है, जो मेरी जो मुशाहिदा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उससे मुझे ये बात समझ में आती है कि हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर चाहे दो भाई हों, चाहे कोई कपल हो, चाहे
कोई भी मतलब ऐसे जो किसी न किसी सोशल बॉन्डिंग के थ्रू मतलब जुड़े हुए हैं, वो लोग बात नहीं करते, वो लोग इश्यूज को के ऊपर जो है बात करना मुनासिब नहीं समझते, वो लोग उनको रिजॉल्व करने के लिए उसके ऊपर डायलॉग्स नहीं लेकर आते। हमारे मुआशरे में भी अगर कहीं पर कोई मसला क्रिएट होता है, कहीं पर फॉर इंस्टेंस बहुत छोटी सी मिसाल है, देखें मैं ज्यादा जो हूँ डीप नहीं जाऊंगा इस बारे में कि बजाय इसके कोई मतलब अलग चीज होती है, लेकिन आज बजट जो है हमारा अनाउंस होता है। अब मैं बिल्कुल मोहतात रह के बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन आज हमारा बजट अनाउंस होता है, लेकिन लोग जो है मतलब वो एक केओस क्रिएट हुआ है मतलब सोशल मीडिया पे, और हर जगह लोगों को जो है वो अपने ओपिनियंस देने, अपनी बातें करनी है। तो मेरा नजरिया ये है कि यार ये एक इशू अगर बन गया ना, तो इस इशू के ऊपर बैठ के आमने सामने डायलॉग होना चाहिए, यानी कि आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताएं, आप हमारा पर्सपेक्टिव सुने, फिर उससे जो जो नतीजा निकल सकता है वो चीजें कि जो दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हो उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको मजीद जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने पर्सनली मतलब अपना जो है इसका प्रोजेक्ट का नाम इजहार ख्याल भी रखा, और हमारी टीम जो साथ थी उसने मतलब काफी ज्यादा मेरा साथ दिया, और इसी वजह से हम लोगों ने जो चीज स्टार्ट की थी कि हमारे मुआशरे में अगर वाकईन आपको अमन को बहाल करना है या आपको पीस प्रमोट करना है, यूथ को अपने साथ एंगेज करना है, तो फिर आप बुनियादी चीज ये कीजिए कि आप यूथ की बात सुने और आप उनको उनके ख्यालात इजहार करने का मौका दें, उनको किस तरीके से अपनी बात 10 लोगों के सामने रखनी चाहिए ये हुनर सिखा दें। तो कल को जब आप खुदा न खास्ता नहीं रहे, या कल को जब आप यहाँ से चले गए, तो आपके बाद आने वाले वो यूथ हैं या आपके बाद आने वाली वो नस्लें हैं कि जो आपकी आइडियोलॉजी को या आपकी बात को या इस अमन को जो है वो सोसाइटी में प्रमोट करेंगी, सोसाइटी में आगे लेके चलेंगी। तो ये मेरा मकसद था, और पर्सनली मैं इस वजह से बिलीव करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में अगर डायलॉग्स और हेल्दी डायलॉग्स क्रिएट हो जाए, यानी ऐसा नहीं कि बहस बराए बहस नहीं हो, बल्कि बहस हो ताकि उसका नतीजा निकल सके, उसका हल निकल सके, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अमन जो है कायम हो सकता है हमारी सोसाइटी में। थैंक यू हसनैन, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि डायलॉग्स तो होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स किसी पीस बिल्डिंग के तहत या फिर किसी मकसद के तहत होने चाहिए। ऐसे ही जो हम लोग डायलॉग करते हैं, ऐसे ही अपना व्यू पॉइंट दूसरों तक पहुंचा देते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा मजीद ख़राब हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच हसनैन। मेहमा, आपसे मेरा सवाल है कि आपने कहा कि सेशन में फारूक सत्तार साहब भी आए थे, और उसके अलावा आपने प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को भी आगे इनवाइट करने का सोच रहे हैं। आप लॉ मेकिंग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, चाइल्ड अब्यूज है, और ऐसे सर्टेन इश्यूज हैं जिनके बारे में यूजुअली हाईलाइट नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एजुकेशन और लॉ मेकिंग की एजुकेशन यंगस्टर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात यही आ जाती है ना कि लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये वो करे जो असेंबली में बैठे हुए, ये वो करे जो सीट्स पे बैठे हुए। फिर हमारे लिए इसकी एजुकेशन, यंगस्टर्स के लिए, आप जैसे यंगस्टर्स के लिए इसकी एजुकेशन क्यों जरूरी है और क्यों लाजमी है? जी मैम। देखिए, यही नैरेटिव एक बात जब हम करते हैं बस में मुकालमा की, हम नैरेटिव की बहुत बात करते हैं, हम परसेप्शन बिल्डिंग की, लॉ मेकिंग के साथ हम नैरेटिव मेकिंग की बात बहुत करते हैं, क्योंकि यही एक नैरेटिव है हमारा कि जब तक वी डोंट हैव टू गिव अ पीएचडी एग्जाम, या फिर एक बंदा सीएसएस नहीं कर रहा, ही डज नॉट इवन नीड टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इवन बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे पास करिकुलर का भी इतना प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है, इवन 9th के मैट्रिक का भी नहीं है, उसमें वी आर गिवन जस्ट सम सैलिएंट फीचर्स टू स्टडी, और वो भी बहुत कम स्टेटमेंट्स में होते हैं। जबकि हम अगर अपना एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसमें हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, फिर उसके सब आर्टिकल्स होते हैं, सब क्लॉसेस होते हैं, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है इस वजह से। तो इसकी स्टडी इस वजह से जरूरी है। एक तो मैंने पहले बात की थी कि राइट्स, आपको राइट्स पता होने चाहिए, दूसरी बात आपको कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए। यू जस्ट डोंट हैव टू रीड दैट, कि हमें सिर्फ ये बेसिक चीजें नहीं पता होनी चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर हम इन कमेटीज की बात करते हैं तो इनके बारे में हम बहुत लर्न हैं। ये हमने जब ये कमेटीज की थी, कंफर्म की थी, तो ये वो इश्यूज थे जो उस वक्त सोसाइटी में बहुत थे। जब 10वें मुकालमा न्यू भी था, फ्रॉम अभी 1-2 महीने पहले चाइल्ड रेप बहुत बढ़ रहे थे, फिर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रही थी लोगों में। तो ये सारे वो इश्यूज थे जिस पर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब की बातें हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं जानता। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी, दूसरी बात
एक जो नॉर्मल स्टडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सिर्फ गाइडलाइन नहीं देता, हमारे पास बहुत सी चीजें, हम अपनी स्टडी कंप्लीट वो करें और स्टडी भी वो जो प्रोडक्टिव हो। हमारे पास टॉलरेंस जब देखने में आती है माशरे में, हमें ये पता होता है कि हम कॉइन का एक साइड देख रहे होते हैं, फिर हम उसी को सच समझने लगते हैं, फिर उसी को हम अपनी नैरेटिव बना लेते हैं। जबकि बहस मुकालमा का मोटिव ही यही है कि आप मॉडरेट हो, सबसे पहले आप टॉलरेंस मॉडरेशन से आती है, आप कभी भी एक साइड में एक्सट्रीमली जाकर कभी भी आप मॉडरेट नहीं हो सकते, कभी भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा मटेरियल पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल आप पढ़ो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे पास जो मटेरियल है आप वो भी पढ़ो, ताकि आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, और फिर आप उसके लिए शोर नहीं मचाओ पहला वजह। और जब वाकई आपके पास किसी चीज का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो फिर आप बात करो और तमीज से बात करो, अप्रोप्रिएटली बात करो। तो यही मकसद था। इस पर मैं एग्जाम्पल, हमने सबसे पहला जो सेशन हुआ था, अभी तक हमारे पास 2 सेशन हो चुके हैं बहस मुकालमा के, तो पहला सेशन हुआ था उसमें हमारे स्पीकर थे मिस्टर अदनान अख्तर, उन्होंने भी यही बात की थी जो मैंने वो कि 2 साइड्स नहीं थे, हमने फेमिनिज्म की बात की थी, तो मेरे पास खलीलुर रहमान वर्सेस मार्वी मेमन हो रहा था, या फिर चले औरत मार्च हो रहा था। तो उसमें ये देखने में आया कि पोस्टर्स की बात निकली कि कुछ ऐसे posters थे that me as being a girl, I was very ashamed of those posters. But क्या बात थी, Mr. Adnan raised a point. Okay. Mr. Adnan raised some point कि आपको नहीं पता कि if they were even right or not, क्योंकि कुछ posters थे वो फोटोशॉप थे, लेकिन अवाम को नहीं पता था। अवाम को हमारे पास देखने की आता है कि देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, बोलने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं वो करते, सुनते बल्कि रिएक्ट करने के लिए करते हैं। जब हमारे पास असेंबलीज की बात आती है जी, तो हमारे पास तनकीद बराए तनकीद होती है असेंबलीज में, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती, और ये बात मैंने फारूक सत्तार से भी कही थी। तो यही बात थी कि आज की यूथ को बहुत ज्यादा एक तो बोलना आना चाहिए, और अच्छा बोलना आना चाहिए, प्रोडक्टिव बोलना आना चाहिए। तो यही बस में मुकालमा का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को लेकर आए आगे। और यूथ की जब मैं बात करती चलूँ, क्योंकि सीओसी जो है वो बेसिकली यूथ ओरिएंटेड है, तो यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्पेशली इस वक्त अपनी इंटायर जो हिस्ट्री है उससे ज्यादा अभी के वक्त पॉपुलेशन है। तो यू कैन इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना यूथ हमारा पार्ट प्ले कर सकती है यहाँ पे, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी कॉम्प्रहेंशन, उसकी स्टडी जो जब इस सेगमेंटेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाती है ना, तो वी कैन सी समथिंग अ वेरी पॉजिटिव फोर्स राइजिंग अप। तो दैट इज द मोटिव बिहाइंड बहस मुकालमा, यूथ को इनकरेज करें और प्रोडक्टिविटी की तरफ इंगेज करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरी कंट्रीज में देखते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता। So yeah, that was the thing that Bethel Mukalma really wants people to know about that. Thank you so much. A very important point that you highlighted. And also क्योंकि youngsters की तादाद हमें पता है कि more than 60% in Pakistan जो population है वो youngsters की है, और आगे जाके youngsters ने ही संभालना है सब कुछ। लेकिन अगर आपको अपनी constitution और law making का ही नहीं पता, so how are you going to solve the issues that are prevailing in the society? Thank you so much for highlighting that, Mehma. हसन, आपसे एक सवाल है मेरा। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर है सीएसआर सोसाइटी के। आपको पता है कि हमारे काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सीएसआर सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, और हमारा खुद का भी जो सीओसी का मकसद है चैंपियंस ऑफ चेंज का, वो यही है कि हम सोसाइटीज को, जो सीएसआर सोसाइटीज हैं, उनको मजबूत कर सके। तो आपको क्या लगा है कि जो सीओसी के तहत पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन्होंने कितने हद तक इन सोसाइटीज को स्ट्रेंथन की है, और कितना ज्यादा इम्पैक्ट आया है सोसाइटीज के स्पेसिफिक ऊपर? हमारी जो फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव थी वो, उसमें मैं था, हिरा थी, जरमीना, रजा, अक्सा, और मतलब हम जितने भी मेंबर्स थे वो सारे जो है वो चैंपियंस ऑफ चेंज का पार्ट थे, जो फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव है। देन उसके बाद जब हमारी जो अभी जो नई एग्जीक्यूटिव आई है, जो सीएसआर सोसाइटी की जो नई एग्जीक्यूटिव बनी है, उसमें फातिमा इज द प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ जो है वो सीओसी का पार्ट थी। और वहीं पे हमें पता चला था कि यार फातिमा की कैपेबिलिटीज क्या हैं। जो हमारी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी है कमर, शी इज करंटली द पार्ट ऑफ सीओसी। एहसन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ही इज करंटली द पार्ट ऑफ सीओसी। और इन शॉर्ट के मतलब सीओसी वो प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स को मिला जहाँ पे उनको अपनी स्किल्स पॉलिश होने का चांस मिला, जहाँ पे वो बेसिकली ग्रूम हुए, उनकी सोचने की जो डायमेंशंस थी वो खुली।
एवोल्यूशन ऑफ थॉट जो थी ना वो वहां पर आई। और इसी वजह से जब CSR का जो इम्पैक्ट था लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें हम, करंटली जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा इनटेक्स हुई, बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज लेकर आए जो नई एग्जेक्टिव है, बहुत अच्छी तरीके से वो उस चीज को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नीचे डिलीवर की हुई हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं ना, वो जो एवोल्यूशन नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज जो कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी पॉलिश हुई थी या ग्रूम हुई थी, जो हम ग्रूम होकर आए थे। तो वो एक उसका नतीजा हमें एक नजर आ रहा है। इसी वजह से जो है जो CSR सोसाइटी करंटली जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, दैट इज फॉर लाइक आप अब रियलाइज नहीं कर सकते कि इस वक्त किस जबरदस्त पैरामीटर पे चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। Oh, I'm proud of them too. Like, you know, you were sharing their successes, and it's such a proud achievement for all of us to realize कि COC का impact CSR societies पर भी रहा है, और आप जैसे students उनको lead कर रहे हैं, and we are really hoping to see कि किस तरीके से वो आगे जाके projects implement करते हैं। सिचुएशन आप लोगों को सबको पता है कि COVID-19 चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन है। काफी प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होने थे, जिनके हमने सेशन सोचे थे कि ऑन ग्राउंड होंगे, हसनैन का इजहार ख्याल का जो प्रोजेक्ट था वो भी हमारे जहन में यही था कि वी आर गोइंग टू हैव डायलॉग्स आउटसाइड ऑफ द कैंपस विद द कॉमन पीपल, विद द कॉमन इंडिविजुअल्स हु आर आउटसाइड सिटिंग ऑन द शॉप्स। अब इजहार ख्याल के हवाले से हसनैन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन अचानक से चेंज हो गई, लॉकडाउन आ गया, और अचानक से एक चीज चेंज हो जाती है और हमारे अंदर ये पता चलता है कि कितनी रिजिलियंस है, हम कितना फ्लेक्सिबल है अपने आप को चेंज करने में और अपने प्रोजेक्ट्स को चेंज करने में। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आया COVID-19 की वजह से, वो क्या चैलेंज था और आपने किस तरह उसको ओवरकम किया अपने प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करते हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हमारा सेशन था वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसी से रिलेटेड किया था कि रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं किस तरीके से इस तरह की जो वबा अगर कोई क्रिएट हो जाए या कोई तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उससे किस तरीके से फाइट बैक करती हैं, कैसे डील कर रही होती हैं। तो वैसे तो बुनियादी तौर पे जो हमारा सेशन होना था वो सेशन हमें ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ करनी थी, क्योंकि हमें खुद लोगों के साथ जाना था। यानी जो हमारे ट्रेनर्स थे सबसे पहले सेशन के लिए वो मोहम्मद उस्मान मलिक थे, जो खुद कराची यूनिवर्सिटी से हैं, और राजी अली खान थे जो NED यूनिवर्सिटी से हैं, और सलामती फेलोशिप के मेंबर भी, मतलब पीस एजेंट भी हैं। तो उनके साथ हमें जो जाना था बंस रोड पे, हम लोगों ने सोचा था कि एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों से बात करेंगे या उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से एक हेल्दी डायलॉग किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सारे सिचुएशन क्रिएट हुई, इसकी वजह से हमें जो है अपने सेशंस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ा। और जैसे मैंने ये बात आपसे भी डिस्कस की थी कि हम लोग कैसे, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम अपनी रीच किस तरीके से जो है वो बढ़ा सकें, या हम लोग किस तरीके से जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, इम्पैक्ट क्रिएट करना भी जो है ना वो काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म हो गई है अब आज के ज़माने में। मेरे नज़दीक जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो ये था कि मैं अपनी बात या अपनी आवाज़ मिनिमम कितने लोगों तक पहुंचा सकूं। और वो इस वक्त अगर मैं ऑनलाइन सेशन की तरफ लेके जाता तो सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक पर अगर मैं सेशंस करवाता हूं तो वो एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिसकी वजह से हुआ ये कि जो चैलेंज मुझे सबसे पहले जो फेस करना पड़ा वो ये ही हुआ कि जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो था वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, कितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑडियंस तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं, लेकिन वो चीज़ जो है वो नहीं हो सकी थी जो मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकेगी। यानी ये मेरा एक चैलेंज आया हुआ था। बट फिर मैंने दोबारा जो है वो मेरे एक दोस्त हैं शाहनिहाल इदरीस, मैंने उनसे बात को डिस्कस किया जो करंटली ओपन माइक के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ओपन माइक ने काफ़ी जो है इसमें हेल्प किया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। कोलैबोरेशन एक हो गई हमारी, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हो गई कि उन्होंने मुझे थोड़ा इसमें गाइड किया कि देखो तुम जो हो वो जाओ और ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करवाओ, लेकिन जो तुम्हारे पैनलिस्ट हो ना, देखो एक चीज ये होती है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं या किसी ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं कि जिसकी आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा से है, लेकिन उन तक जो है ना वो आम आदमी की रीच नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे जो है वो अयाज ईमन साहब को लेकर आऊँ और उनके साथ सेशन करूँ तो ये है कि उनकी बात लोग सुनेंगे तो, लेकिन अगर किसी को अपना सवाल होगा या अपने लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होगी तो वो उन तक नहीं पहुँच सकता। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ और सियासी लीडर्स हैं, कुछ और ऐसे सोशल वर्कर्स हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम ऐसे लोगों के साथ जाओ या ऐसे लोगों के साथ सेशन करो कि जिन तक एक आम आदमी या जो हमारी यूथ है वो बहुत ईजिली जो है वो पहुँच सके। तो जिसकी वजह से मैंने सेशन इस तरह से डिज़ाइन किए कि हमारे पास जो लोग आए उन तक जो है वो लोगों की रीच हो और इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हो कि वो 2 वे डायलॉग सेशन हो जाए। यानी ये लोग अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और उनकी जो बात है वो इन तक पहुंच जाए ताकि उस पर हम लोग काम करना शुरू कर सकें।
तो पहला बुनियादी चैलेंज तो यही था कि ऑडियंस तक हमारी बात हो सके। उसके बाद ये था कि हम लोग इम्पैक्ट अपना किस तरीके से जो है वो मेजर करें। जो यहाँ पे किसी ने सवाल भी हमसे शायद किया हुआ था वो यही था कि इम्पैक्ट किस तरीके से, यानी आपने एवेल्यूएट किस तरीके से किया कि आपका जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड सेशंस करते हैं तो मतलब आपको लगता है कि चलो अगर एक बंदे ने जो नहीं बोलता था, जो नहीं बात करता था, उसने बात करना शुरू कर दी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार इसने हमारी वजह से एटलीस्ट 2 जुमले तो बोले। बट अब इस वजह से इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होंगे, तो वो ये है कि खुद मतलब जो हमने सेशंस इनिशिएट करवाए उसकी वजह से 2 ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने इंस्पायर होके खुद अपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए, जिसमें से जो है वो फेसबुक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए। और उसमें से एक तो कराची यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पर होती हैं, जो लॉ के डिपार्टमेंट से हैं, और उन्होंने मतलब अपने एक स्टार्ट किया, आवाज़ के नाम से पेज स्टार्ट किया। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने उससे वहाँ से बात करना शुरू की। और इस तरीके से मेरे एक और जो दोस्त हैं जो खुद बहरी यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन्होंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बट उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर डिबेटिंग सोसाइटी को जो है उसमें एक्टिविटीज दोबारा बहाल करना शुरू की इसी के थ्रू। तो ये मेरे लिए एक पर्सनली अचीवमेंट थी कि मैं कुछ खुद इतना बड़ा कोई मतलब इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता सोसाइटी में, लेकिन हमारे सेशंस की वजह से कुछ लोगों ने मजीद इनिशिएट करना शुरू किया। और वही बात है कि मतलब ये कड़ी से कड़ी या शमा से शमा जलने वाली बात होती है कि सोशल कम्युनिटी चैंपियंस ऑफ चेंज ने आके हमें चीज़ें सिखाई, हमने आकर जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को लेकर गए और फिर उसके थ्रू लोग उसको लेकर गए, मजीद इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये 2 मेन मेरे पास चैलेंजेस थे कि ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करूं और इम्पैक्ट्स को किस तरह से एवेल्युएट करूं। तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुली हो गई हैं। जबरदस्त। नहीं, आई एम सो हैप्पी टू हियर कि किस तरह ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ था कि आपके प्रोजेक्ट से किस तरह इन्फ्लुएंस होके बाकी यंगस्टर्स ने अपने प्लेटफॉर्म दे स्टार्टेड देयर ओन प्लेटफॉर्म्स, व्हिच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि इम्पैक्ट तो एज सच यू कांट रियली मेजर इट 100%, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि किस तरह बाकी यंगस्टर्स आपसे इन्फ्लुएंस हुए और आपकी टीम से इन्फ्लुएंस हुए हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। महमा, आपकी तरफ आते हैं कि आप जैसे अब्दुल सत्तार जो आपने अभी फारूक सत्तार के साथ आपने जो सेशन किया और आप जो पर्सनैलिटीज के साथ आगे जाके सेशन कर रहे हैं, तो उस अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं कि आप किस तरह अपने प्लान्स को आगे लेके जाने का सोच रही हैं, किस तरह, क्योंकि हम लोगों के प्रोजेक्ट्स एंड नहीं होते। वी बिलीव कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट जो हमारे सीयूसी के हैं वो कभी उनका इख्तिताम नहीं होता, वो दी एंड तो उनका आता नहीं है। देयर ऑल ऑनगोइंग प्रोसेस, वो आगे चलते रहते हैं। सो व्हाट इज योर प्लान अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ बज़्म मुकालमा और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, अभी तो फिजिकली तो हमने करवाना ही है ऑन प्रेमिसेस, नो मैटर कितना भी आगे हम लोग का पैंडेमिक खत्म होता है तो वो तो होना ही है डेफिनेटली, नो मैटर वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो। वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, ऑब्जेक्टिव की बात आती है वहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव कितना आगे चलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी हो रही है और हम उसके ग्राउंड्स और एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। वो और हम लोग के सेशन बाय सेशन भी हो रहे हैं। इसके अलावा जब हम लोग के खुद के जो सोशल लीडर्स, जिनको हम कहते हैं डेलीगेट्स भी कहते हैं, उनको सोशल लीडर्स कहते हैं, तो उनके जो उनकी अवेयरनेस बढ़ी है। जैसे स्पीकर ने बात की थी, हसनैन ने बात की थी कि एक बच्चा दूसरे को सिखा रहा है, वो दूसरा तीसरे पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये इम्पैक्ट, एक तो ये हमारी चेन है जो कि हम सस्टेनेबिलिटी इसको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा व्हेन आई वाज मेकिंग द फाइनल रिपोर्ट ऑफ COC, तो उसमें आई हैड इवन मेंशन दैट वी मे आल्सो इंट्रोड्यूस बज़्म मुकालमा 2.0 वेयर, क्योंकि अभी लिमिट थी, क्योंकि हमें 4 कमेटी से ज्यादा हमारे पास सोशल इश्यूज तो बहुत हैं। अब अगर हमारे पास इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं 12 से 16 इश्यूज हमारे पास, तो हम सारी कमेटी नहीं बना सकते। तो अभी हम इन 4 कमेटीज पर इम्पैक्ट बिल्ड करें। हो सकता है उसके बाद अगर हम 2.0 बज़्म मुकालमा के साथ आते हैं तो उस पर उन दूसरे इश्यूज की तरफ बात करें दैट रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। तो क्योंकि हमारे पास बहुत, जब हम प्लानिंग कर रहे थे, फॉर्मुलेट कर रहे थे कि कौन सी हमारे पास कमेटीज हैं दैट रिक्वायर द अटमोस्ट अटेंशन, के जिनको हम प्रायोरिटी पे रखें, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम कौन से इश्यूज को हाईलाइट करें। तो इसी वजह से कुछ कमेटीज ऐसी भी हैं कि अगर हमने चाइल्ड रेप पर कमेटी भी रखी, हमने चाइल्ड एब्यूज पर रखी। अब उस एब्यूज के अंदर हमने बात करनी है लेबर की भी, चाइल्ड लेबर की भी बात करनी है हमने, उसमें उनकी सेक्सुअल एब्यूज की भी बात करनी है, उसके बाद उनकी एजुकेशन पर भी बात करनी है हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एम्पावरमेंट में भी हमने ये एक बहुत लंबा थॉट प्रोसेस था कमेटीज को ही डिजाइन करने का, उनको थिंकिंग उनकी एक नतीजे पर आने का। तो एम्पावरमेंट पर भी हमने सारे सेगमेंट्स रखे, मेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर ट्रांसजेंडर की हमारे पास अलग कमेटी बन सकती थी, बट हमने उसी एम्पावरमेंट के अंदर उन ट्रांसजेंडर को भी डाल दिया। माइनॉरिटीज की बात थी,
तो माइनॉरिटीज के लिए ही एक कमेटी नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरफेथ है। इंटरफेथ के अंदर हम इंटरफेथ जो हिंदू क्रिश्चियन इन सब की बात तो करेंगे, लेकिन हम इसमें सुन्नी शिया वहाबी इन सब की भी बात करेंगे। तो इसमें हम इनकरेज करेंगे, इंटरफेथ नाम तो एथनिसिटीज को नहीं डायरेक्ट कर रहा, बट स्टिल वी विल ट्राई के हम एथनिसिटीज को भी इसमें लाएं। तो ये एक था कि हमने इन इश्यूज को एक बड़ा जो एक्सटेंशन थी हमने उसको एक पोजे में बंद कर दिया समंदर को। उसके बाद अगर हम आगे की सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हम दूसरे इश्यूज को टारगेट कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा हम लोग एक मोटिव लेकर चले थे कि अगर एक बच्चा भी हमसे सीख लेता है और क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करता है या फिर एक मॉडरेट बेसिस पर आकर चीजों को समझने की कोशिश करता है, वो ए की बात नहीं करता, वो बी को भी पढ़ने की कोशिश करता है, दूसरी साइड को भी पढ़ने की कोशिश करता है, तो दैट विल बी अ सक्सेस फॉर आर इटसेल्फ। और बहुत से बच्चों ने ये किया भी है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर आप देखें सम 200 एंड सम फ्यू पेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल है हमारा भी, पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाएगा, अपने फोन में रखें, जब आप फ्री हो आप उसके बारे में पढ़ो। तो बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है। इसके अलावा वो पॉलिटिकल स्टडी भी होती है और तो इस पर भी बच्चों ने पढ़ने की कोशिश की है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये किया है कि लॉ मेकिंग की बात की। अब बच्चे समझ रहे हैं ये हमारा तो डोमेन है ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियंस का है। तो वैसे मुकालमा क्या ये मोटिव था कि उनको बताया जाए कि यूथ का भी है, जरूरी नहीं है जो नेशनल असेंबलीज में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं, कैबिनेट का पार्ट है, दैट देयर थिंग टू डील विद। बल्कि फारूक ने बहुत अच्छी बात की थी कि यू डोंट नीड टू बी इन पॉलिटिक्स टू बी अटैच्ड विद द लॉ मेकिंग, बल्कि अगर आप यू आर एन इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन योर सर्कल, या आपको अपनी बात करनी आती है, या आप अपना जो इन्फ्लुएंस है जो कि पॉलिटिशियंस असेंबलीज में करते हैं, अगर आप वो ग्राउंड लेवल पर एक लेवल पर बैठकर वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर रख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन का प्रोसेस से गुजर के असेंबलीज में आए। तो यू डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल वहां तक आने के लिए। अगर आप आपस के सर्कल में इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो दैट्स इनफ फॉर यू। तो ये सस्टेनेबिलिटी थी जो कि क्रिएट हो गई है कुछ हद तक, और कुछ हद तक हो रही है, और जब हमारा वाकई में एक्चुअल इवेंट होगा तो उसके लिए हमारे पास वी आर वेरी हाई होप फॉर दैट। तो ये सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा बॉम्ब होगा जो बस मुकालमा का एक जब इवेंट होगा तो वो जरूर होगा इंशाल्लाह। वी आर वेरी होपफुल अबाउट दैट। We are looking forward to that इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त होगा जिस तरीके से आप पैशनेट होके बता रही हैं और जिस तरह आपकी टीम काम कर रही है उसके ऊपर। We are really hopeful too कि बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट होगा आगे, and it will be a very sustainable project, if we look at it that way. So हसन, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं काफ़ी, हम NED की बात करते हैं, UIT, न्यूपोर्ट्स, कराची यूनिवर्सिटी, BBSUL और ये जेबिस तक हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे हैं। तो इनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं COC के साथ, किस तरह उन्होंने ट्रेनिंग्स ली, मेंटोर हमने उनको मेंटोर भी किया, प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत भी होती रहती है। अभी भी मेरे पास स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं कि जब वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे मैम बता दें कि आप क्या कहती हैं, हाउ डू यू वांट टू सी इट एंड ऑल दैट। सो हमारे लिए भी एक अलग से एक्सपीरियंस है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट से की तरफ से देखा जाए इट्स ऑल्सो वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर देम। आपसे पूछना चाहती हूँ हसन, फॉर यू हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ COC फॉर यू पर्सनली, हाउ डू यू सी द एक्सपीरियंस? जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त जब मैं पहली लेक्चर हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन का जो पहला लेक्चर था वो लेने गया था, तो आई एम लाइक ए पर्सन जो कि एक जगह टिकता नहीं है। तो मुझे ये था कि यार एक जगह मुझे 4 घंटे टिक कर 4 से 5 घंटे जो है वो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। और फिर ये था कि क्योंकि मुझे ये होता कि मैं जब सोसाइटीज क्योंकि जब स्टेबल हो रही थी उस वक्त बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी, तो और मैं हर जगह होता था डिबेटिंग कि हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पे भी था, इसके अलावा जो दूसरी सोसाइटीज थी उनके साथ भी काम कर रहा था। तो मुझे सबसे बड़ा मसला होता था कि मैं यार एक जगह 4.5 से 5 घंटे अपने किस तरह से दूंगा। बट अगेन जब मैं वहाँ पर उसका पार्ट बना और मैं वहाँ पे जो जितने भी इंटर्नीज थे उनसे जब मिला और जब मैंने उनमें टैलेंट देखना शुरू किया तो आई वाज लाइक मैंने ये जाना कि यार मुझे इस ग्राउंड पे जितना सीखने को मिलेगा या जो मेरे 4 से 5 घंटे जो यहाँ पर लग रहे हैं दैट विल बी वंडरफुल। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ बनकर निकलूंगा। मतलब दैट इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा ग्रूम करने में हेल्प दी। और हुआ ऐसे ही कि वहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास, नईम है, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। आपको पता होगा
ही इज फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, और वो ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको मैं जानता था पहले से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतने सारे स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं. he can sing, he can write, और वो ऐसा राइटर नहीं है, he is a wonderful writer. He can speak, और उसके अंदर ऐसे स्किल्स हैं, वो पियानो बजा सकता है, वो गिटार बजा सकता है, वो मतलब उसके अंदर इतने स्किल्स थे कि जब मैं उससे मिला मैंने कहा यार तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. आई वाज लाइक सरप्राइज्ड. तो हमें वहां पे पता चला. इसी तरह अरीशा was with us, और अरीशा was like a little hesitant mouse टाइप की बंदी थी. वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करती थी. बट देन आफ्टर दिस सेशन जो हमारे जो कंक्लूजन हुआ था, उसके बाद वो बंदी जो है इतनी ज्यादा, उसमें इतना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो बात करने लगी. एंड आई हैव सीन हर इवॉल्विंग थ्रू आउट द टाइम. उसके बाद फिर उसने स्पोर्ट्स सोसाइटी में पार्ट लिया और वो उसकी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनी. एंड लाइक शी इज रनिंग इट वंडरफुली. इस तरह की बहुत सारे जो कैरेक्टर्स ऐसे थे जो वहां पे देखने को मिले. हमारी खुशनसीबी ये थी कि हमें जो हमारे स्टूडेंट एडवाइजर थे कराची यूनिवर्सिटी के सरासिन, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. हमें उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है. और उसके अलावा जो हमारे उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर अजमल, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, और अभी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर खालिद इराकी, और इसके अलावा हमारे जो पैट्रन सोसाइटी के थे डॉक्टर सलमान, इन सबकी जो सपोर्ट थी ना वो थ्रू आउट द टाइम हमारे साथ रही. अक्सर ये होता था कि डॉक्टर आसिम हमारे सेशन में आ गए, डॉक्टर सलमान हमारे सेशन में आ गए, तो वो जो एक एनर्जी लेवल होता था कि यार टीचर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, और वो एक जो होती है ना आपको कि यार टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट लेकर आती है. फिर ये था कि उसके जो हम जो वहां पे उस वक्त सेशंस कर रहे थे, उनके इम्पैक्ट्स हमने जब देखना शुरू किए. आरा अनजिप द साइलेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, जरमीना, रजा वगैरह इसको लीड कर रहे थे. तो उन्होंने जिस तरह से जो सेशंस कंडक्ट करना शुरू किए, उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, उसका जो रिस्पांस आना शुरू हुआ, वो रिस्पांस ऐसा था कि यार हमने कभी एस्टिमेट नहीं किया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा जरूरी हैं. अनजिप द साइलेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे जो मेंटल हेल्थ के ऐसे केसेस आना शुरू हुए, जहां पे हमें पता चलना शुरू हुआ कि यार हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि एक मेंटल हेल्थ इश्यूज में सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा अरसे से. उनकी जो स्टोरीज हैं वो चाहते हैं किसी तरह से वो सुनाएं, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो उनके जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन मिले. तो वहां पे जो सेशंस कंडक्ट हुए उसके जरिए जो है उनको एक रिलीफ वाला फैक्टर हुआ. तो वो जो आउटपुट मिलना शुरू हुआ उससे हमें खुशी होती थी कि यार दैट इज समथिंग, वी आर मेकिंग अ डिफरेंस. जहां पे आप ये फील करना शुरू करते हैं ना कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, वो जो खुशी होती है वो एक अलग से खुशी होती है. फिर हम जब जाते थे अपना जो प्रोजेक्ट था हमारा स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर, उसमें हम मुख्तलिफ बच्चों से मिलना, उनसे उनकी स्टोरी सुनना कि यार उनकी कहानियां क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो इस मुल्क में किस तरह से एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाह रहे हैं. और मैं बताना चाहूंगा कि वाकई में ऐसे बच्चे मौजूद थे जो कि मेहनत कर रहे थे, और ऐसे बच्चे भी थे जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको काम करना पड़ रहा था, और वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकें. तो वहां पर उन बच्चों से मिलना, उनकी स्टोरी सुनना, और फिर जाके प्राइवेट स्कूल्स में मतलब जाना, उनसे बात करना एंड ऑल दैट, ये जो एक्सपीरियंस था वो. फिर जो हमारा एक एनवायरनमेंट वहां पे बना हुआ था. अब जो सीओसी के जो इंटर्नीज हैं जो मेरे साथ वहां पे मौजूद थे, दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली फॉर मी. बहुत ज्यादा क्लोज जो है उनसे दोस्ती है. It's like a family. एग्जैक्टली वो एक फैमिली बन It's like a जाती है. family. Yeah. वो जो खुशी होती है ना वो एक अलग है. अभी भी हम सोच रहे थे ये सर्विस का जो चल रहा है, हमने कहा यार हम भी अपनी सीओसी जो हम वो बनाएंगे. तो वो सारी चीजें हैं. और इसके अलावा फिर मुर्तजा भाई, बिकॉज ही इज अ डिबेटर, तो उनकी जो कांस्टेंट सपोर्ट थी थ्रू आउट दीज सेशंस, और जिस तरह से वो हमें बूस्ट करते थे, जिस तरह से वो सेशंस जो है उनमें हमारे लिए लीनियंसी करते थे, मेरे लिए बहुत ज्यादा किए उन्होंने. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. ही इज लाइक करंटली सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो मैं चाहूंगा कि बल्कि आप एंड में उनके लिए दुआ भी करवाएं. जरूर ही जरूर, अल्लाह को बेहतर.
ग्रेट पर्सन। वो बंदे थे जिन्होंने पार्लियामेंट्री डिबेट का एक तरह से यहाँ पे कराची में जो है वो इनिशिएटिव लिया था। एंड पार्लियामेंट्री डिबेट इज, हसनैन जानता होगा कि हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट से, बिकॉज पार्लियामेंट्री डिबेट ऐसी चीज है ना जहाँ पे एक कंक्लूजन निकल कर आता है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और आप जो है उन सॉल्यूशंस को आप सिंध असेंबली में या नेशनल असेंबली में भेजकर आप उनको बता सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमने ये सोल्यूशन निकाला है, या यूथ जो है वो समझती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस तरह से कैटर किया जा सकता है। तो वो पार्लियामेंट्री डिबेट, और उसके अलावा जो है हमें सीखने को मिलता है कि पार्लियामेंट में किस तरह से डिबेट होती है, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर एंड ऑल दैट, वो बहुत एक मजे की चीज है। तो वो सारी चीजें सीखने को मिलना, फिर जो हमारी आपस में जो मुर्तजा भाई शुरू में शर्माते थे हम काफी ज्यादा एक दूसरे से बात करना एंड ऑल दैट, ये वो, तो वो जो बैरियर्स थे हमारे अंदर, जो हमारे अंदर एक आप कह लें फेयर फैक्टर्स थे, वो खत्म होना शुरू हुए। और जहाँ पे फेयर फैक्टर्स खत्म होना शुरू होते हैं ना, तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होना शुरू होता है। डेफिनेटली आप सोसाइटी में इस तरह से उभरते हो कि लोग देखते हैं कि यार ये बंदा तो क्या था और क्या से क्या बन गया। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा शाय टाइप का लड़का था, और विद इन दीज सोसाइटीज मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला, और मैं बहुत ज्यादा अपने फेयर फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता गया। फिर मुझे ये चीज थी कि यार जो मैं सीख रहा हूँ ना, जो एबिलिटीज मेरे अंदर डेवलप हो रही है, जो स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं, मैंने उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज को डिलीवर करना है, और वो पार्ट एक्शन में कन्वर्ट करना है, एक्शन में कन्वर्ट करना है। एंड दैट वाज द पार्ट, फिर वहां मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली बात है, फिर अगेन वही बात कि सीओसी वो पार्ट था जहां पे मुझे डायमेंशंस मिलना शुरू हुई, जहां पे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि यार मैं किन डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकता हूँ, और मैं अपने एम को अचीव कर सकता हूँ। तो इट वाज समथिंग वेरी वंडरफुल, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी इसका पार्ट किसी न किसी तरह बना लूँ। नहीं, डेफिनेटली हमारे जो अलमनाइज है वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, हम भी ये चाहते हैं। एंड जब आपने सर्विस एड का बोला है ना, पर्सनली मैं तो चाहती हूँ आप लोग जरूर बनाए एंड शेयर इट विद अस, बिकॉज दैट वुड बी रियली समथिंग अमेजिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड ऑफ कोर्स आपने जिस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इट्स सो हार्टवेलमिंग एंड इट्स सो वार्म टू लिसन टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, और बड़ा मजा आता है कि किस तरह से COC ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, वैसे हसनैन के बारे में बताना चाहूँ, हसनैन रिमेम्बर हमारी जो पहली क्लास थी एंड यू वर सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और मुझे यही बात करनी थी आपकी। And so I wanted to know your experience as well, क्योंकि फर्स्ट क्लास में यूजुअली एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज्यादा होती नहीं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है, टाइम जाया यार, आके फिर वही बोलेगी, कितना हम लोग सुनेंगे। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड आपका पहले एक्सपेक्टेशन क्या था, फिर बाद में हाउ डिड इट चेंज? अच्छा, क्योंकि आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया, मुझे बात करनी थी, तो मैं उस तरफ भी आऊँगा ज़रूर। लेकिन पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो मैं यूनिवर्सिटी आने से पहले काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स वगैरह में, या इस तरह के जो पार्लियामेंट्री डिबेट जैसे आपने नाम लिया, ये एमयूएन्स वगैरह होती थी, बहुत ज़्यादा इन था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आया और मेरा कैंपस मेन कैंपस नहीं था, सिटी कैंपस था, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ये सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि कॉन्सेप्ट के दूर दूर तक कोई सोसाइटी की बात भी नहीं करता था वहाँ पे। मतलब बस ये है क्योंकि वहाँ पे आर्किटेक्चर भी है और साथ में डेवलपमेंट स्टडीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब इनोवेशन या क्रिएटिविटी की बात नहीं होती। बहरहाल अब हमारा पहला साल तो गुजर गया था, तो काफ़ी ज़्यादा मायूस था मैं, और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जिससे कहते हैं कि दिल मेरा दुखा हुआ था कि मैं वो बंदा कि जैसे बगैर बोले जिसका महीना नहीं गुजरता, बगैर किसी मुकाबले में जाए उसका महीना नहीं गुजरता, और वो अब अपने कैंपस में कुछ नहीं करवा सके, और अपने कैंपस में करवाने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब नहीं हो सकती थी चीज़ें इतने सालों से जो ख़राब थी या बंद पड़ी हुई थी। तो फिर हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर था, और उसमें हमने लोगों ने देखा कि भाई हमारे 5 कोर्सेज ऐसे हैं कि जो हमारे क्रेडिट आवर कोर्स हैं, उसके अलावा 2 नॉन क्रेडिट आवर कोर्सेज भी हैं, और उसमें से जो चैंपियंस ऑफ चेंज का कोर्स था वो हमारा स्लॉट में था, जो 2 बजे से 4:30 बजे वाला होता है, नहीं सबसे लास्ट स्लॉट, जिसमें बंदा पूरे दिन का थका हुआ भी होता है और दूर दूर तक दिल नहीं चाहता है किसी की भी कोई बात सुने, और तब इनका जो है वो सेशन रखा गया। अब हमारा पहला सेशन था, और इत्तेफाक से हुआ ये कि उस दिन जो है वो रात में नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और इंतहाई थका हुआ
इंतहाई सोने वाली हालत में मैंने वो पहले जाके क्लास में बैठा। मुझे आज तक याद है कि मैं सबसे जो लास्ट बेंच थी, सबसे लास्ट Yes. बेंच, उस पे जाके बैठा जहाँ पे जो है वो, और वहां पे जाके मतलब मैं जो वो हेड डाउन करके बैठ गया और मैंने कहा कि यार ये वही रिवायती सेशंस होंगे, वही जो कन्वेंशनल तरीके से लोग पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे होते हैं, बस थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें होंगी और चीजें होंगी और वो बदल जाए, मतलब सेशन तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जब सेशन स्टार्ट हुए तो पहले अच्छा जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा वो बहुत ही यूनिक तरीके से करवाया मैम फातिमा ने। मैम फातिमा ने कहा कि आप लोग अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन इस तरीके से देंगे कि अपना नाम बताएंगे, अपना बैच बताएंगे और ये बताएंगे और किसी भी एक कोट या किसी भी एक शेर के जरिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब एक बहुत यूनिक बात है और इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। मतलब फिर जो है वो थोड़ा सा हम लोगों ने, मैंने वहाँ पे पर्सनली इंटरेस्ट लेना शुरू किया और फिर हमारे वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई ऑब्वियसली। फिर मतलब ये होता था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी सुबह की क्लासेस लेने ना जाऊँ तो लाजमी तौर पे मैं वो 2:30 बजे वाला स्लॉट जिसमें चैंपियंस ऑफ चेंज की क्लास होनी होती थी वो लेने जरूर आता था। इसमें मेरे प्रोफेसर वाकई में डांटते थे, यानी कि ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं उसमें जो तुम वो छोड़ के और तुम ये क्लासेस लेने आ रहे हो और ये है और वो है। मैंने कहा आप लोग नहीं समझेंगे, बहुत जमाने पहले की अंदर की बातें थी जो अब निकल के बाहर आ रही है, एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। बहरहाल फिर हम लोगों ने जो है वो चीज़ें सीखी, मतलब पूरा सेमेस्टर हमारे साथ रहा और सर मुर्तज़ा से जो है मतलब पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ गए थे क्योंकि हमारा ट्रिप एक हुआ था, तो ट्रिप पे हमारे साथ सर गए थे एज मतलब हमारे मेंटोर थे, हमारे गाइड थे, तो उनके साथ सर मुर्तज़ा के साथ ट्रिप भी हमारी रही। फिर उसके बाद वापस आके जो मतलब जिससे कहते हैं कि फिर तो वाकई ऐसा मतलब वो एक मेंटोर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं, फिर तो मतलब वो एक सीन, मतलब ऐसा कि हम लोग गाइडेंस मतलब लेने लगे मुर्तज़ा को, सर मुर्तज़ा को मुर्तज़ा भाई, मैम फातिमा, इस तरह के हम लोग इनको बहुत ज़्यादा क्लोज हुए और उन्होंने पर्सनली जाके मतलब जो है वो चीज़ें डिस्कस करना शुरू की कि हमें इन चीज़ों में मसले हैं या ये चीज़ें हमारे साथ जो है इशू आ रहे हैं। बहरहाल तो मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि जिससे कहते हैं ना कि मतलब एक वो बंदा कि जिससे डिबेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और रिसेंटली मतलब जैसे मैम ने बताया कि मतलब ARY पे जो इफ्तार ट्रांसमिशन होती है वो भी मतलब मैंने जो है अभी जीता है और उसमें मतलब टाइटल उसका लिया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर पर्सनली बात करूं और ये मैं इसका क्रेडिट दूं तो वाकई नहीं चैंपियन ऑफ चेंज को इस वजह से जाता है क्योंकि जिसने जो बात अभी हसान ने की कि कॉन्फिडेंस अगर बंदे में दोबारा बहाल हो जाए, कॉन्फिडेंस दोबारा उसमें बूस्टअप हो जाए, तो फिर वो वाकई मतलब एक अलग ही तरीके से जो माशरे में चलना शुरू करता है और एक अलग ही तरीके से वो सोसाइटी में मूव ऑन करता है। तो यही हुआ मेरे साथ भी कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर चुका था वो दोबारा चैंपियंस ऑफ चेंज की वजह से बहाल हुआ। मैंने दोबारा सोसाइटी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि जिसमें मुझे सोशल रिसर्चेस करनी होती हैं, तो मेरे पास करने को तो बहुत कुछ था, मतलब पोटेंशियल हद से ज्यादा थी, बट उसको चैनलाइज करना किस तरीके से है, किस तरीके से उसको डायरेक्ट करना है, इसका सारा क्रेडिट जो है मैम फातिमा और सर मुर्तज़ा और ऑब्वियसली चैंपियंस ऑफ चेंज की पूरी टीम को जाता है। और मैं वाकई बेहद शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि मुझे मतलब मौका मिला। वो अलग बात है कि शुरू में हमारे ऊपर चीज़ थोपी गई थी लेकिन बाद में हम लोगों ने खुद उस चीज़ को एंजॉय किया और हम लोगों ने उसको तरीके से लेके बढ़े आगे कि आज मतलब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ या मेरी पूरी टीम इज़हार ख्याल की जिसमें मतलब हमारे पास 5 से 6 मेंबर्स थे, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जैसे ईमान जो है वो बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग करती हैं, उन्होंने जिस तरीके से कंटेंट डेवलप करना शुरू किया, फसिया ने जिस तरीके से लीड किया टीम को, उरूबा थी, अमीका थी हमारे साथ, मुइस से हमारे पास, इन सब लोगों ने जिस तरह से टीम को लेकर चले तो वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त था। और बस अपनी बात ज्यादा यहीं पे खत्म करूंगी, जज्बात तो बहुत ज्यादा है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं देख रहा हूँ टाइम भी बढ़ता जा रहा है और ऐसा ना कि ऑडियंस भी हमारी बोर होना शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और मतलब मुझे उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो मैं अपने प्लान्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला इज़हार ख्याल को एक सोशल जो है स्टार्टअप की तरफ लेके जाने का सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बिल्कुल गाइडेंस देता रहूँगा। Thank you so much. बहुत सुन के it feels so happy that the impact of COC is so huge कि आपने कितना अच्छे तरीके से उसको बयान किया और अपने एक्सपीरियंस को हमारे तक पहुंचाया। So thank you so much हसनैन। आप यंगस्टर्स हैं, आप लोग चेंज मेकर्स हैं, आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, काफी इम्पैक्ट उनका रहा है, काफी सक्सेसेस भी रहे हैं, चैलेंजेस भी रहे हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मायूस की आ जाती है, जैसे अचानक से लॉकडाउन हो गया, लेकिन रेजिलियंस जिस तरह आप लोगों ने शो की, अपने प्रोजेक्ट्स को आप ऑनलाइन लेके चले गए। मेहमा, आपसे सवाल है मेरा, सवाल नहीं है बट इट्स मोर ऑफ एन स्टेटमेंट कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं यंगस्टर्स को कि अभी उनको क्या करना चाहिए, what do you want them to do, how do you want them to change and how do you want them to impact the society? क्या मैसेज होगा आपका यंगस्टर्स के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो लास्ट सेशन के एंड में मैंने स्टैट्स कुछ बयान किए थे कि यूथ कहा कि बहुत सारी है UNDP के मुताबिक, लेकिन उस यूथ में से जो हम अभी इंटरनेट पे बैठ के बातें करते हैं या फिर अपना इज़हार ख्याल करते हैं, हमारे पास जिनके पास फैसिलिटीज हैं वो अराउंड 10 to 15% है सिर्फ। तो वी आर द प्रिविलेज्ड वंस
तो हमें अपनी लाइफ को बहुत बेकार कुछ तरीके से नहीं गुजारना चाहिए। और यूथ को तो जो हम लोग यंगस्टर्स हैं उनको तो कभी फारिग बैठना ही नहीं चाहिए। ये मेरी मामा भी कहती है, मैंने उनसे सीखा है, अपने फादर से सीखा है। तो आपको हमेशा ऑलराउंडर रहना चाहिए, ये मेरा मंत्रा है। और आपको हर चीज में घुसना चाहिए बिल्कुल। और टांग अड़ानी चाहिए, कोई मसला नहीं है। और जैसे आपने बात की थी लास्ट के स्पीकर से कि वो उनका क्या एक्सपीरियंस था, तो चैंपियंस ऑफ चेंज का ये था कि स्टार्टिंग के कुछ सेशन से तो मुझे चुप, मैं अपने आप को चुप करवाती थी कि मैम शट अप, दूसरों को बोलने दो। तो ताकि दूसरों को भी वो लगे, क्योंकि मैं बोलने पर आती हूँ या फिर अपनी एक्सप्रेशन जब एक्सप्रेसिव होती हूँ तो दैट्स टू मच फॉर द सोसाइटी स्पेशली। आई एम नॉट पर्सनली एक्सप्रेसिव वेरी मच। तो मेरा मैसेज यही है कि आप हर चीज करें, हर काम करें, एक तो अपने आप को आर्म करें, आर्म विद नॉलेज। अकल लोगों को बहुत मुमताज बनाती है, अकल इंसान को बहुत मुमताज बनाती है। आई रेड इट समवेयर फ्रॉम द नॉवल, और इसको भी मैंने अपना मंत्र बना लिया। अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को, इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज वेरी डिस्कस्ड टुडे, तो इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को बनाएं। उसके अलावा पढ़ें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, तो अगर मेरा मुताला था तो जब भी मैंने इसके बारे में सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडी होनी चाहिए। अब नॉवेल्स की बात करते हो, फिक्शन की बात करते हो, तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, फिर हिस्ट्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी सोशल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपको आप नो, इट्स ओके इफ यू आर इंट्रोवर्ट, बट आप इंट्रोवर्ट रह कर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप उसके थ्रू सोशली एक्टिव हो सकते हैं। जरूरी नहीं है यू डोंट हैव टू फेस पीपल। सही है, तो आप अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप इस इवन इस एज में, दैट्स द एज ऑफ कंपटीशन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग, चाहे वो मेंटली हो या चाहे वो कॉन्टेक्ट, आपके कॉन्टेक्ट कितने हैं, सोशली कितने हो, या फिर आपका खुद से कैसा रिलेशन है, आप खुद को कैसे देखते हो, आपकी सेल्फ स्टीम क्या है। अपनी सेल्फ स्टीम को बहुत डेवलप करो। अगर आपका खुद का रिलेशन अपने साथ अच्छा नहीं है, you cannot be good with the others, you have to be tolerant with yourself first, then you can preach these things to themselves, to others. तो यही मैसेज है, बस अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। अगर जब आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप माशरे को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। जब आप टॉलरेंस की बात करते हो, डाइवर्सिटी की बात करते हो, तो आपके दिमाग में खुद डाइवर्स बहुत सारे थॉट्स होते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा हर चीज को परखती हूँ इस बात पे, कि अगर मैं कभी कभी खुद को भी डिसलाइक कर देती थी किसी बात पर, तो जब हम किसी दूसरे को डिसलाइक करते किसी बात पे, तो हम उससे ताल्लुक क्यों तोड़ देते हैं? अपने से तो ताल्लुक नहीं तोड़ते, अपने आप को तो मारना पीटना शुरू नहीं करते, तो हम दूसरों को मारना पीटना क्यों शुरू कर देते हैं? और कर्मा इज समथिंग, इज द कॉन्सेप्ट दैट टुडे बहुत ज्यादा लोग इस पर बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। तो कर्मा को अपनी लाइफ का एक क्या बोलना चाहिए, एक गेट बना लें, अपना अंदाज बना लें। आप कुछ भी काम करें, अगर आप सोचें किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो आप यू जस्ट बी रेडी कि आपको धोखा मिलेगा। इफ यू आर बीइंग वेरी बैड टू योर फ्रेंड या सम एनी अदर ह्यूमन बीइंग, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि एग्जैक्ट वही चीज आपको लौटाई जाएगी। तो बस आप एक अच्छे इंसान बन के रहें। आपको बहुत बहुत कम वक्त दिया गया है इस दुनिया में, तो उसको आप प्रोडक्टिवली प्लीज यूज करें, फिर वरना आगे की जिंदगी के लिए आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। So that's the thing. Thank you, Mehma. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. हसान और हसनैन, आपसे भी सेम सवाल होगा। सवाल तो नहीं है, दोबारा मैं रिपीट करूँगी। It's a statement. It's an open platform for you to share a message to the youngsters out there जो आपके जैसे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में। What do you have to say for them? You know, एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं। मैं दूं या हसनैन? नहीं, हसान आप शुरू करें और उसके बाद जो भी शुरू करें, ऑफ कोर्स ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी शुरू करे। अच्छा, मेरा मैसेज यही है कि हम देखते हैं कि यार हम बीइंग द यंगस्टर्स या बीइंग द यूथ, हम ये कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में बेतहाशा मसाइल हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं एंड ऑल दैट। तो कितने मसले होंगे? 50, 100, 150, 200, 300, 400। अगर हम में से हर एक, हम यंगस्टर्स में से हर एक सिर्फ ये डिसाइड कर ले कि हमने इस मुल्क में से 10-12 नहीं, सिर्फ एक मसला हल करना है, कोई एक ऐसा मसला जिसे हम समझते हैं बहुत बड़ा मसला है और उसे कैटर करने की जरूरत है, इसे खत्म करने की जरूरत है। सिर्फ हम ये एम अपना एक तरह से सेट कर लें कि हमने उस एक सिंपल प्रॉब्लम को, जो हम समझते हैं कि हमारे माशरे को खराब कर रहा है या तबाह कर रहा है, हमने उसको खत्म करना है। तो
मैं ये कहता हूँ कि बीइंग, जब हम बात करते हैं 60% यूथ की, तो हम ना सिर्फ वो मसाइल खत्म करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी जनरेशन बनकर सामने आएंगे जो कि पाकिस्तान को ऐसे पैरामीटर्स पे और ऐसी मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां पे दुनिया हमें देखेगी, जहां पर हमारे दुश्मन, जिसे हम दुश्मन कहते हैं या हम कहते हैं कि यार इंडिया एंड ऑल दैट, वो सोचेगा भी नहीं कि यार हम जो है वो पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखें। एक चीज। और दूसरी चीज, मैं अपने यूथ को ये कहना चाहता हूँ, अपनी जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि यार हमने टॉलरेंस की कमी है और हमें उस चीज को कैटर करना है। बिकॉज जब मैं यूरोपियन कंट्रीज को देखता हूँ, जब भी कोई बाहर मुल्क से आता है, मैं हमेशा उनसे सवाल करता हूँ कि यार आपने क्या देखा, कि क्या डिफरेंस है उनमें बीइंग द नेशन या हम में। तो उसमें फिर मुझे ये लगा कि यार हमने एक तरह से एहसास की और एक जो बर्दाश्त, जो टॉलरेंस है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, कभी कभी मुझे भी मतलब होता है कि यार मैं मतलब चीजें जो है वो मेरी उस लिहाज से जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा जिस लिहाज से मुझे बर्दाश्त करनी चाहिए। तो बीइंग द ये जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसको अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त की जो सलाहियतें हैं वो इंटीग्रेट करना पड़ेंगी, और उनको जो है वो एहसास करना पड़ेगा, उनको अपने ह्यूमन बीइंग्स का एहसास करना पड़ेगा। और जब तक हमारे अंदर एहसास नहीं होगा ना, फिर ये सारे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल बेमायनी है और उनका कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे अंदर एहसास नहीं है फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स। जो वो एहसास आ जाएगा, फिर हम एक ऐसी नेशन, एक ऐसा कंट्री बनकर सामने आएंगे जिसका फिर पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डेफिनेटली एक एम्पैथी, एक एहसास, कंपैशन दूसरों के लिए रखना लाजमी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो होते रहेंगे लेकिन जब तक आपके दिल में एहसास नहीं है तो इस प्रोजेक्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकता जितना आप चाहते हैं। हसनैन, ओवर टू यू, आप अपना मैसेज दें और उसके बाद फिर प्लीज। हेलो हसनैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पे हसने भी की जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी 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 हसनैन बोले। हेलो जी हसनैन, यू आर ऑडिबल जी। अच्छा, तो मैं कह रहा कि हसन काफी बातें की और जो मेहमान उन्होंने भी काफी जबरदस्त बात की कि देखें हम लोग यहाँ पर फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कराची की ही सिर्फ बात करें, पाकिस्तान तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है, अगर सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में यहाँ पर कोरंगी में रहने वाले जवान अलग हैं, औरंगी में रहने वाले जवान अलग हैं, लांडी में, लियारी में रहने वाले, सिर्फ लियारी के अंदर 60 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से मेजर मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो जवान हैं। अब बात सारी ये कि देखिए हमारे मुल्क में या हमारे शहर में हरगिज पोटेंशियल की कमी तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दावे से बात कह सकता हूँ कि मेरी पर्सनली मेरे जानने वाले कुछ ईरान में रहते हैं, कुछ जर्मनी में रहते हैं, कुछ कनाडा में रहते हैं, लेकिन उन सबका एक बात मतलब कहना ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची के अंदर इफ्तार, वो रमजानों में जो इफ्तार ड्राइव्स होती हैं या अभी रिसेंटली ये जो सारे मसाइल शुरू हुए, तो अगर गवर्नमेंट नहीं इसके अंदर आ रही थी तो हम लोग खुद निकल के, मतलब मैंने इतने लोगों को देखा कि जो लोग खुद निकल के इस वक्त बाहर आए, और मेरे एक जानने वाले तलहा आलम साहब हैं कि जो इस वक्त औरंगी में रहते हैं और वो मतलब पिछले 50 से 60 दिनों से लगातार पका हुआ खाना घरों में पहुंचा रहे हैं। तो मुर्सा भाई हमारे पास मौजूद है, मुर्सा भाई ने खुद लोगों को जानते हैं कि जो लोग ड्राइव्स कर रहे हैं। तो एक बात तो देखें यहाँ पर बहुत क्लियरली वो ये है कि हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में पोटेंशियल की कमी नहीं है, ठीक है। अब उस पोटेंशियल को चैनलाइज करना, डायरेक्ट करना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो जैसे हमारे जैसे, यानी वो लोग कि जिनके पास फिल वक्त खुदा की तरफ से वसाइल मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे किसी ना किसी वजूहात की वजह से तालीमी इदारों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम में से मुझे इंक्लूड करते हुए, हसन को इंक्लूड करते हुए और मेहमा को इंक्लूड करते हुए बहुत सारे जवान ऐसे हैं कि जो तालीमी इदारों तक पहुंचते हैं, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज, जिन्हें हमारी सोसाइटी अच्छी यूनिवर्सिटीज का लेबल देती है, वहां पर पहुंचते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोग
कि जो वाकईन काम कर रहे हैं लेकिन उनको काम करने का ढंग या काम करने का सलीका उतने अच्छे से नहीं आता कि उनके काम से कोई इम्पैक्ट हो। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ खुद को जोड़ें, बजाय इसके कि हम अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक इस वैसी हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, इसमें इतने क्लासेस बनी हुई है, एक और क्लास हम लोग अलग से, एक और तबका अलग से बना लें कि यार ये वो इंटेलेक्ट माइंड्स हैं या ये वो लोग हैं कि जो मतलब खुद काम करना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके हमें चाहिए कि हम खुद डिस्पर्स हों, हम ऐसी सोसाइटीज में जाएं, हम ऐसे लोगों के साथ मिलें कि जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है, उस काम को सस्टेनेबल कैसे बनाना है, उस काम को मजीद कैसे आगे लेकर बढ़ना है, ये सिखाएं उन लोगों को। जो मैंने पर्सनली चैंपियंस ऑफ चेंज से सीखा है और जो मेरा अब मोटिव है, मतलब मैं जिसके लिए काफी ज्यादा पैशनेट हो चुका हूं, वो यही है कि देखें, एक चीज तो ये होती है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करूं जिसमें मुर्तजा भाई भी जानते होंगे, आप भी जानती हैं कि मतलब जो बहुत प्रोमिनेंट नाम होते हैं हमारे माशरे के, ठीक है, उन लोगों के साथ मिलकर काम करूं तो उसमें बहुत वाहवाह मिलेगी, बहुत ज्यादा फेम भी हो जाएगा और क्या पता मतलब मैं खुद भी मतलब एक बुलंदी की तरफ जाने लगूं। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो वर्टिकल नहीं हो, उसको आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लेके चलो कि वो आपकी स्प्रेड आउट हो, वो आपकी फैले और वो आपकी उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोग वाकईन हमारे लिए आज यानी लोगों का दर्द रखते हैं लेकिन वो बेचारे लाचार हैं, वो बेचारे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी ना किसी ने हाथ रखा हुआ है, उनके ऊपर मसाइल हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोग आगे बढ़कर काम कर सकें। तो यही मेरा बेसिक मोटिव भी है और मैं चाहूंगा कि हम जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग मजीद इसको बाद में सुनेंगे, वो लोग इस चीज को यकीनी बनाएं कि अब जैसे आज के दौर में भी जो लोग हमारे लिए सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी का अच्छा सोचते हैं, उनके साथ अपने आप को जो है वो जोड़ें, उनके साथ अपने आप को मिलाएं और इस तरीके की सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ताकि जो हो कल को आने वाली सोसाइटी में, कल को आने वाली नस्लें हमारी जो हैं, वो जो हम लोगों ने फेस किए, जो मसाइल हम लोगों ने फेस किए, एटलीस्ट हम लोग इतने जिम्मेदार तो हों कि हमारे आने वाली सोसाइटी, हमारे आने वाली नस्ल वो मसाइल फेस ना करे। वरना तो फिर सिर्फ बातें करने का, सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाने का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाँ ये कर लें कि आप अपनी बात को आने वाले लोगों के लिए बेहतर कर सकें, जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए उन मसाइल को दूर कर सकें, तो शायद हम जवान नस्ल का या हम लोगों का जो जवान माइंड्स रखते हैं, जो मतलब सोचना जानते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हसनैन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हसनैन, हसान एंड महमा, आप लोगों ने बहुत खूबसूरती के जरिए अपनी स्टोरी शेयर की। जैसे हमारा पूरा इम्पैक्ट हम इस सेशन से क्रिएट करना चाहते थे, लोगों तक आपकी स्टोरीज पहुंचाना चाहते थे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों को हम बताना चाहते थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका इजहार किया। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा आपके सारे जो बातें सुन के, आपके जो सारे इम्पैक्ट आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए क्रिएट किए हमको सुन के। So thank you so very much to our speakers. Thank you so much for coming to the session and giving us your valuable time. Inshallah आगे जाके और मजीद सेशंस होंगे हमारे, so hope to see you all soon. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you सो so मच। much. और हम दुआ Thank you. करते हैं कि ये कोविड जल्दी से खत्म हो और मुर्तजा भाई हमारे जल्दी से ठीक हों। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल इंशाल्लाह, सेहत अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको बहुत ज्यादा सेहत दे, अल्लाह तमाम लोगों को सेहत दे जो इस मुश्किल आमीन वक्त से गुजर रहे हैं। आमीन आमीन और हम सबको महफूज रखे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।